Assalamu alaikum and good morning. Welcome to Forward Public School e-learning class 5th. Subject is Science Chapter 2 Microorganisms. Reading and explanation along with book exercise. I am your science teacher Alina Nizam. Open your book at page number 20. We will start with the next chapter, that is chapter number 2 Microorganisms. Microorganisms and their identification. Take out your pencils and write down the meanings of difficult words. Identification का मतलब है शनाख्त. The word micro is originated from Greek language which means small. Greek का मतलब है यूनानी, language ज़ुबान, small छोटा. माइक्रो का लफ्ज़ जो है यूनानी ज़ुबान से निकला है जिसका मतलब है छोटा. Microorganisms or microbes are living forms whose size is so small that they are usually not visible to naked human eye. Living का मतलब है जानदार, forms का मतलब है किस्म, visible का मतलब है जो नज़र आए. Microorganisms जो हैं ये living forms हैं जो जिनकी साइज़ इतनी छोटी होती हैं कि ये हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते. They can only be seen from a special equipment known as microscope. Equipment का मतलब है आला. ये हमें एक ख़ास किस्म के इक्विपमेंट से नज़र आते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. द स्टडी ऑफ दीज माइक्रोब्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोब्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. डायग्राम में आपको माइक्रोस्कोप दिखाई गई हैं. ये पिक्चर जो आपको नज़र आ रही हैं ये बैक्टीरिया के पार्टिकल्स हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं. नाउ टर्न टू पेज नंबर 21. Microorganisms are present almost everywhere on the earth. Microorganisms are very diverse and include all bacteria, viruses and certain microscopic animals. Diverse का मतलब है वसी. Microorganisms जो है ज़मीन पर हर जगह पर मौजूद होते हैं. Microorganisms जो है ये diverse हैं, मतलब कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के organisms मौजूद होते हैं जिनमें बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आते हैं. Despite their minute size, they have tremendous importance in the maintenance of life on earth. Despite का मतलब है बावजूद, tremendous का मतलब है बहुत ज़्यादा. इनके छोटे साइज़ होने के बावजूद भी इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये ज़मीन पे लाइफ को मेंटेन रखती हैं. Some of them are very helpful, some are harmful and cause different diseases. कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदेह होते हैं और ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा करते हैं. Main groups of microbes. There are thousands of varieties observed under the category of the microorganisms. Varieties का मतलब है किस्में. हज़ारों किस्में माइक्रोऑर्गेनिजम्स की अभी तक देखी जा चुकी हैं. The most important groups are virus, bacteria and fungi. लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाले ग्रुप्स हैं उनमें वायरस आता है, बैक्टीरिया और fungi. First one is virus. A virus is a small infection-causing agent that replicates only inside the living cell of other organisms. स्मॉल का मतलब है छोटा. वायरस एक छोटा बीमारी पैदा करने वाला एजेंट है या ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर ये रेप्लिकेट करता है, अपने कॉपीज़ बनाता है. Virus can infect all types of life forms from animals and plants to microorganisms including bacteria and fungi as well. इन्फेक्ट का मतलब है मुतासिर करना. वायरस जो हैं सारे जानदार किस्म की चीज़ों को ये मुतासिर करती हैं, एनिमल्स और प्लांट से लेकर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक. इनमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं. Viruses are found almost everywhere on the earth and are most abundant type of living organisms. Abundant का मतलब है बहुत ज़्यादा. Viruses ज़मीन पर हर जगह पर मौजूद होते हैं और ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले organisms हैं. The study of viruses is known as virology, which is subgroup of microbiology. Viruses की study को virology कहते हैं जो subgroup है microbiology का. Now turn to page number 22. Viruses as living and non-living things. Viruses cannot feed, respire, excrete, grow and even reproduce unless they are inside the living cell. Feed का मतलब है खुराक लेना, respire सांस लेना, excrete खारिज करना.
वायरसेस ना तो खुराक ले सकती हैं, ना ये सांस ले सकती हैं, ना अपने गंध को खारिज कर सकती हैं और ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, अपनी कॉपीज़ बना सकती हैं जब तक ये एक लिविंग सेल के अंदर ना हो। When they live outside the living body, they are found in a form of crystals. अगर ये लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं तो ये क्रिस्टल की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। क्रिस्टल्स हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होता है जिनके जो साइड्स होते हैं वो प्लेन होते हैं। Now, shapes of viruses. The shapes of viruses particle are helical, spherical, rod-like and tadpole shape. वायरसेस हमारे पास मुख्तलिफ़ शक्लों में पाई जाती हैं। हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर भी होता है इनका, स्फेरिकल भी होता है, रॉड लाइक भी होता है और टेडपोल शेप भी होता है। हेलिकल स्पाइरल स्ट्रक्चर को कहते हैं, स्फेरिकल जो है राउंड शेप को कहते हैं। आपको डायग्राम में राउंड शेप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दिखाई गई हैं। रॉड लाइक, रॉड शेप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, आपको डायग्राम में रॉड शेप दिखाई गई है, ये ट्यूब लाइक शेप होती हैं। टेडपोल शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस, आपको डायग्राम में ये टेडपोल शेप दिखाई गई है जिनमें वायरस का हेड, नेक और टेल मौजूद होती हैं। पॉलीहेड्रल शेप ऑफ एडिनो वायरस, पॉलीहेड्रल शेप जो है ये 3 डायमेंशनल शेप होती हैं जिनके जो एजेस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और साइड्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। एजेस कहते हैं किनारों को। Now, size of virus. The average virion is about 100 the size of average bacterium. एक एवरेज वायरस का साइज़ जो है एक बैक्टीरियम के 100 हिस्सों में से एक हिस्से के बराबर होता है। Second topic is bacteria. These are tiny living beings. They are neither plants nor animals. Tiny का मतलब है छोटा, living जानदार। बैक्टीरिया जो हैं छोटे जानदार किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये तो ना प्लांट्स हैं और या ना ही ये एनिमल्स हैं। दे बिलोंग टू सेपरेट ग्रुप ऑल बाय देमसेल्फ। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। सेपरेट कहते हैं अलग को, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप है और ये हर जगह पर मौजूद होते हैं। Now, size of bacteria. Bacteria usually range from few micrometers in length that normally exist together in millions. Few का मतलब है कुछ। बैक्टीरिया के जो लेंथ है वो कुछ माइक्रोमीटर से स्टार्ट होता है और ये ग्रुप में मिलियन बैक्टीरिया जो है ग्रुप में एक साथ मौजूद होते हैं। Now, turn to page number 23. Shapes of bacteria. Bacteria are basically of 4 shapes such that rod shape, round shape, spiral shape and comma shape. They have no nucleus inside them. बैक्टीरिया 4 शक्लों में पाई जाती हैं, रॉड शेप में, राउंड शेप में, स्पाइरल शेप में और कॉमा शेप में। इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। राउंड शेप आपको डायग्राम में दिखाई गई है, गोल किस्म के होते हैं। रॉड शेप ट्यूब लाइक होते हैं। स्पाइरल शेप भी आपको डायग्राम में दिखाई है। कॉमा शेप ये कॉमा के शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। Third is fungi. Fungi are categorized in a separate kingdom because they have different features from bacteria, animals और plants. Features का मतलब है खुसूसियात। फंजाई जो हैं इनको एक अलग किंगडम में रखा है क्योंकि इनकी जो खुसूसियात है वो बैक्टीरिया, एनिमल्स और प्लांट्स से मुख्तलिफ होती हैं। फंजाई जो है फंजाई आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। दे वेरी इन साइज एंड शेप्स। फंजाई ज़मीन पर हर जगह पर मौजूद होती हैं। इनके जो साइज़ और शक्लें हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। वेरी का मतलब है मुख्तलिफ होती हैं। साइज़, सम आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल एंड सम आर लार्ज। कॉमन एग्जाम्पल आर मशरूम्स, राइजोपस एंड ईस्ट एक्सेट्रा। फंजाई जो हैं कुछ स्मॉल होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल जो है इनमें मशरूम्स आते हैं, राइजोपस और ईस्ट आता है। फंजाई आर डेसिग्नेटेड एज हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। सम ऑफ फंजाई गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स एंड आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक फंजाई। कुछ फंजाई जो है अपनी खुराक लेते हैं उन ऑर्गेनिजम से जो मर जाते हैं। ऐसे फंजाई को हम सैप्रोफिटिक फंजाई कहते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 24. Advantages and disadvantages of microorganisms. Microorganisms have great effect on organisms' life. Effect का मतलब है असर। Microorganisms का organisms की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर है। Some are beneficial and some other are harmful. Beneficial फ़ायदेमंद
हार्मफुल नुकसानदेह, कुछ फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदेह होते हैं। हेयर वी विल एक्सप्लोर बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एस्पेक्ट्स कहते हैं पहलुओं को, एक्सप्लोर कहते हैं दरियाफ्त करना। यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दोनों पहलुओं को अभी दरियाफ्त करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है तैयार करने का अमल। बैक्टीरिया एंड फंजाई such that yeast, penicillium and lactobacillus etc. are used in the production of fermented food and beverages. Beverages कहते हैं मशरूबात को, ड्रिंक्स वगैरह को। प्रोडक्शन पैदावार। बैक्टीरिया मेक चीज़ एंड योगर्ट वेयर एज फंजाई मेक ब्रेड। योगर्ट कहते हैं दही को। बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं जैसे कि ईस्ट, पेनिसिलियम, लैक्टोबैसिलस हो गए, ये फर्मेंटेड फूड के पैदावार में और बेवरेजेस के बनाने में इस्तेमाल होती हैं। फर्मेंटेड फूड उन फूड को कहते हैं जिसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस अकर होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए होता है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। बैक्टीरिया चीज़ और योगर्ट बनाने में इस्तेमाल होती हैं और फंजाई जो है वो ब्रेड बनाती हैं। नेक्स्ट इज़ मेकिंग मेडिसिन्स। बैक्टीरिया मेक vitamins for us. Bacteria and fungi are used for the production of antibiotics, vaccines and insulin. बैक्टीरिया vitamins बनाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं ये एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और इंसुलिन के बनाने में इस्तेमाल होती हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं जब कभी इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स हैं। इंसुलिन जो है ये डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिनको शुगर होता है, ये इंसुलिन के इंजेक्शंस वो इस्तेमाल करते हैं। Microorganisms in agriculture. Microorganisms are used as to enhance fertility of soil, biofertilizers, as well as to kill harmful pests and saving crop from diseases. Enhance का मतलब है ज़्यादा करना, fertility ज़रख़ेज़ी, crop फसल, पेस्ट कीड़े। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को ज़्यादा करते हैं और ये जो नुकसानदेह कीड़े होते हैं इनको ख़त्म करते हैं और फसलों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं। Microorganisms in environment. Microorganisms help to degrade the toxic material like oil, petroleum, plastic, etc. डिग्रेड का मतलब है कम करना, टॉक्सिक जहरीले। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये जहरीले मटेरियल्स जो मौजूद होते हैं इनके मिकदार को कम करते हैं, जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम और प्लास्टिक वगैरह हो गए। Microorganisms in digestion. Many bacteria live inside human intestine to help in digestion. Intestine कहते हैं अंत को। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं ये इंसान के अंत के अंदर रहते हैं जो खुराक के हज़म होने में मदद करते हैं। Cleaning water. Bacteria are also used to clean our drinking water. बैक्टीरिया हमारे लिए पीने के पानी को साफ़ करने में भी इस्तेमाल होती हैं। Microorganisms as decomposers. Some microorganisms such as bacteria and fungi are decomposers. They break down the dead organisms and matter into simple substance and thus increase the fertility of soil. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई हो गए ये डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं इनको रेज़ा करते हैं जिसकी वजह से मिट्टी की ज़रख़ेज़ी ज़्यादा होती है। Now turn to page number 25. Disadvantages of microorganisms. Some disadvantages of microorganisms are as follows. First one is diseases in plants. Microorganisms can cause diseases in plants. Microorganisms plants में बीमारियां पैदा करती हैं. First one is bacteria cause leaf spot, fire blight and wilts disease. बैक्टीरिया लीफ स्पॉट, फायर ब्लाइट और विल्ट की बीमारी पैदा करती हैं. विल्ट्स कहते हैं मुरझाना. लीफ स्पॉट बीमारी में पत्तों पर दाग निकल आते हैं. फायर ब्लाइट्स और विल्ट्स की बीमारी में पत्ते और जो प्लांट का शूट सिस्टम है वो मुरझा जाता है और नीचे की तरफ झुक जाता है. फंजाई कॉज रस्ट एंड स्मट डिजीज़. फंजाई रस्ट और स्मट की बीमारी पैदा करती हैं. रस्ट कहते हैं जंग को. रस्ट और स्मट डिजीज़ में प्लांट पे ब्राउनिश और रेडिश किस्म के स्पोर्स नज़र आते हैं. थर्ड इज़ वायरस कॉज रिंग स्पॉट. वायरस रिंग स्पॉट की बीमारी पैदा करती है. रिंग स्पॉट की बीमारी में प्लांट्स पे रिंग किस्म के दाग नज़र आते हैं. रिंग गोल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं. Second is diseases in animals. Viruses, bacteria and fungi cause diseases in animals. Viruses, bacteria और fungi जानवरों में बीमारियां पैदा करती हैं. They enter into their bodies and attack their immune system. Immune system कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत को. Attack कहते हैं हमला. ये इनके जिस्म के अंदर जाते हैं और इनके क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर हमला करते हैं.
Thus, animals face serious illness that sometimes leads to even death, such as botulism, bumblefoot, etc. Animals इसकी वजह से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो मर जाते हैं, जैसे कि बोट्यूलिज्म और बम्बलफुट की बीमारी से। बोट्यूलिज्म जो है ये जानवरों में पाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें जानवरों के पाँव और जो लेग्स होते हैं और आर्म्स होती हैं उनमें कमज़ोरी ये लोग महसूस करते हैं और इनको बोलने में मुश्किल होती हैं। बम्बलफुट मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारी है, जिनमें मुर्गियों के पाँव पर रेडिश किस्म के दाने निकल आते हैं, जिनके अंदर पीप होता है। Now, microorganisms spoil food. Bacteria and fungi can be responsible for spoilage of food. Spoilage कहते हैं ख़राब करना। बैक्टीरिया और फंजाई खुराक को ख़राब करती हैं। When these microorganisms break down the food, waste products are produced. जब ये microorganisms खुराक को रेज़ा करते हैं तो इससे waste products पैदा होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स गंद को कहते हैं। दीज प्रोडक्ट्स हैव अनप्लेजेंट स्मेल, स्पॉइल फूड एंड आर हार्मफुल टू हेल्थ। ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये बदबूदार होते हैं। अनप्लेजेंट कहते हैं नागवार को। स्पॉइल फूड खुराक को ख़राब करते हैं और ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 26. Microorganisms cause human diseases. Bacteria, viruses and fungi cause serious diseases in human. Bacteria, viruses और fungi जो हैं ख़तरनाक बीमारियां पैदा करती हैं इंसानों में। Diseases caused by viruses. फ्लू एक बीमारी है जो कि वायरसेस से पैदा होती है। फ्लू में खांसी होती है, बुखार होता है। स्मॉल पॉक्स में भी हमारे पास बुखार होता है, सर में दर्द होता है, साथ में वॉमिटिंग होती है। मीज़ल्स खसरा को कहते हैं। मीज़ल्स में बॉडी पे रेश आ जाता है और नाक बहती है, खांसी होती है इसमें। पोलियो में लोग माजूर हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। हेपेटाइटिस में पेट में दर्द होता है, साथ में वॉमिटिंग होती है और जो आंखें हैं वो येलो हो जाती हैं। एड्स एक बीमारी है जिसमें ज़्यादातर लोग इससे मर जाते हैं। डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। कॉलरा हैज़ा को कहते हैं, जिसमें वॉमिटिंग होती है और पेट ख़राब होता है। टेटनस बैक्टीरिया से पैदा होने वाली एक बीमारी है जिसमें ज़ख़म जो है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन अभी इसके लिए इंजेक्शंस और मेडिसिन्स मौजूद हैं। नमूनिया इसमें भी खांसी होती है, बुखार होता है। कभी कभी इन्फेक्शन जो है लंग्स फेफड़ों में चला जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। टाइफाइड फीवर में ह्यूमन इंटेस्टाइन पे दाने निकल आते हैं, इसमें भी बुखार होता है और सर में दर्द होता है। ट्यूबरक्लोसिस में हमारे पास खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बुखार होता है। स्किन इन्फेक्शन जिल्द की बीमारियों को कहते हैं। डिजीज़ कॉज बाय फंजाई। रिंगवॉर्म डिजीज़ में हमारे पास जिल्द पे पैचेस आ जाते हैं और साथ में जिल्द जो है वो ख़ारिश करती हैं। एथलीट्स फुट में हमारे पास पाँव के जिल्द पे हमारे पास ख़ारिश होती हैं और बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती हैं। एक्जिमा में जो जिल्द है वो ख़ारिश करती हैं, इस पे हमारे पास दाने निकल आते हैं जिनके अंदर पीप होता है। स्किन इन्फेक्शन जिल्द की बीमारियों को कहते हैं। Now, next topic is infection. Infection is the attack of an organism into the body, and when they start reproducing itself in the body, this may cause serious diseases in the body. जब किसी ऑर्गेनिज्म के जिस्म में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला करता है और उनके जिस्म के अंदर ख़ुद को रेप्लिकेट करता है, अपने कॉपीज़ बनाता है, तो इससे जिस्म में बीमारी पैदा होती हैं जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। इससे जिस्म में ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं। Turn to page number 27. Entering the human host. Microorganism can enter into human body by following ways. Microorganism इंसान के जिस्म के अंदर जाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। Skin. Dirty hands are major source of germs to enter into the human body. Besides them, wounds, scratches, etc. are an entry point for germs into the body. Bacteria causing tetanus enter into the body through cuts on the skin. Dirty hands का मतलब है गंदे हाथ, wounds, ज़ख़म। गंदे हाथ जो हैं एक बहुत बड़ा ज़रिया है जिससे जरासीम जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर जाते हैं। इसके अलावा जो ज़ख़म हैं, जो हमारे जिल्द पे स्क्रैचेस आते हैं, इसके ज़रिए भी जरासीम इंसान के जिस्म के अंदर जाते हैं।
वो बैक्टीरिया जो टेटनस की बीमारी पैदा करती हैं, जब हमारे जिल्द पे कट्स लगते हैं उसके ज़रिए ये बैक्टीरिया जो है जिस्म के अंदर जाते हैं। एनिमल्स, बाइट्स ऑफ एनिमल्स सच दैट डॉग, कैट, rat, etc. and even of insect, mosquitoes transfer germs into the body. बाइट्स कहते हैं काटने, वो एनिमल्स जो काटते हैं जैसे कि डॉग, कैट, रैट वगैरह हो गए, और इंसेक्ट्स सच दैट मॉस्कीटोज, मच्छर जो होते हैं, इसके ज़रिए भी जरासीम जो हैं इंसान के जिस्म के अंदर जाते हैं। कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर, अनहाइजीनिक एंड पोअरली कुक फूड एंड डर्टी वाटर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। अनहाइजीनिक कहते हैं जो साफ़ ना हो, वो खुराक जो साफ़ ना हो और जो सही तरह नहीं पके होते या गंदे पानी में जरासीम मौजूद होते हैं। द जर्म्स डायरेक्टली एंटर इनटू आवर बॉडी व्हेन वी ईट देम। ये जरासीम जो है हमारी बॉडी के अंदर आसानी से चले जाते हैं जब हम ऐसे खुराक को खाते हैं। एयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, कफ आर प्रेजेंट इन एयर ड्यू टू स्नीजिंग और कफिंग ऑफ एनी पर्सन्स। स्नीजिंग कहते हैं चीखना, कफिंग कहते हैं खांसी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है फ्लू के, ट्यूबरक्लोसिस के और कफ के, वो हवा में मौजूद होते हैं जब कोई भी इंसान जो बीमार हो वो खांसता है या चीखता है। When healthy person inhale in such environment, germs enter into their body with inhaled air. Inhale का मतलब है सांस अंदर लेना। अगर कोई सेहतमंद आदमी ऐसे माहौल में सांस लेता है तो ये जरासीम इनके जिस्म के अंदर चले जाते हैं। Next topic is how to avoid infection. Follow these tips to decrease the risk of infection getting into yourself or others. नीचे आपको टिप्स दिए गए हैं, अगर आप इन टिप्स पे अमल दरामद करेंगे तो इन्फेक्शन का रिस्क कम हो सकता है। फर्स्ट वन है वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब है बार बार, अपने हाथों को बार बार धोएं। सेकेंड इज़ डू नॉट शेयर योर पर्सनल आइटम्स लाइक टूथब्रश एक्सेट्रा। अपने पर्सनल आइटम्स दूसरों के साथ इस्तेमाल ना करें जैसे कि टूथब्रश वगैरह हो गई। थर्ड इज़ कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज और कफ। अपने मुंह को छुपाया करें जब आप खांसते हैं या छींकते हैं। Now turn to page number 28. Get vaccinated. वैक्सीन लगाया करें। Use safe cooking practices. खाना पकाते वक्त सफाई का ख्याल रखें। Stay home when ill. घर पे रहें अगर बीमार हैं। Follow Islamic rules regarding cleanliness. सफाई के लिहाज से जो इस्लामी अहकामात हैं उस पे अमल दरामद करें। Take bath daily. हर रोज़ नहाया करें। Wash hands before and after eating meal. After using toilet. हाथों को धोएं खाने से पहले और खाने के बाद में और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। ट्रिम का मतलब है काटना, नाखूनों को काटें और उसकी सफाई का ख्याल रखें। से प्रेयर, इट एंश्योर्स क्लीनलीनेस। एंश्योर का मतलब है यकीनी बनाना। नमाज पढ़ा करें, इससे सफाई पैदा होती हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 29. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स बुक एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज़ द वर्ड माइक्रो इज़ डिराइव फ्रॉम डैश ऑरिजिन। माइक्रो का लफ्ज़ कौन सी ज़ुबान से निकला है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी इंग्लिश, डी डच। द करेक्ट आंसर इज़ ए ग्रीक। सेकेंड इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज़ आर रेफर्ड एज। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियाँ पैदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ए जर्म्स, बी एजेंट्स, सी पैथोजेंस, डी एंटीजेंस। द करेक्ट आंसर इज सी पैथोजेंस। थर्ड इज कॉमन कोल्ड इज एन इन्फेक्शन कॉज ड्यू टू। कॉमन कोल्ड एक बीमारी है जो किस चीज़ से पैदा होती हैं? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस, डी पैरासाइट। द करेक्ट ऑप्शन इज बी वायरस। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज़। इन नीचे दिए गई बीमारियों में से कौन सी बैक्टीरियल बीमारी नहीं है? ए फूड पॉइजनिंग, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी इन्फ्लुएंजा, डी नमूनिया। द करेक्ट ऑप्शन इज सी इन्फ्लुएंजा। एड्स इज कॉज बाय। एड्स एक बीमारी है जो किस चीज़ से पैदा होती हैं? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंजाई, डी पैरासाइट। द करेक्ट ऑप्शन इज बी वायरस। सिक्स्थ इज विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड ह्यूमन इंटेस्टाइन टू हेल्प इन डाइजेशन। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंसान के अंत के अंदर रहते हैं और खुराक हजम होने में मदद करते हैं? ए फंजाई, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी पैथोजन। द करेक्ट ऑप्शन इज बी बैक्टीरिया। 7 इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्टडीड बाय। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस चीज़ से स्टडी कर सकते हैं? ए टेलीस्कोप, बी सेटोस्कोप, सी माइक्रोस्कोप, डी मैग्नीफाइंग ग्लास। करेक्ट ऑप्शन इज सी माइक्रोस्कोप।
8 इज़ वायरस कॉज, वायरस कौन सी बीमारी पैदा करते हैं? ए फ्लू, बी कफ, सी फीवर, डी मसल क्रैम्प्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए फ्लू। 9 इज ब्रेड इज राइजन बाय, ब्रेड किस चीज़ से फूलता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी एनिमल्स, डी ईस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डी ईस्ट। 10 इज मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड और योगर्ट बाय, मिल्क जो है योगर्ट या कर्ड में तब्दील होता है किस चीज़ से? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई, डी लेमन। करेक्ट ऑप्शन इज बी बैक्टीरिया। Thank you for listening. We will continue the written work of this chapter in next class. Take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz.